हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनेंशियल लेसन विद सचिन जलतारे। और आज मैं आपके साथ फाइनेंशियल लेसन नंबर 2 की शॉर्ट स्टोरी नंबर 1 शेयर करने जा रहा हूँ फ्रॉम द बुक थिंक एंड ग्रो रिच रिटन बाय नेपोलियन हिल। सो सेकंड फाइनेंशियल लेसन था डिज़ायर। सो उसकी शॉर्ट स्टोरी नंबर 1। Yeah, so short story number 1 is title है short story number 1 का Desire Outwits Mother Nature. I wish to introduce one of the most unusual people I have ever known. I first saw him a few minutes after he was born. He came into the world without any physical signs of fear, and the doctor admitted, when pressed for an opinion, that the child might be deaf and mute for life. I challenged the doctor's opinion. I had the right to do so. I was the child father. I too reached a decision and rendered an opinion, but I expressed the opinion silently in the secrecy of my own heart. I decided that my son would hear and speak. Nature could send me a child without ear, but nature could not induce me to accept the reality of the infliction. In my own mind, I knew that my son would hear and speak. So ऑथर है इसमें इन्होंने ये बोल रहे कि इन्होंने जब सबसे पहले सबसे अनयूजुअल पीपल को देखा जस्ट आफ्टर वो पैदा हुआ था। वो इस जब दुनिया में आया तो वो उस फिजिकल साइन ऑफ उसके ईयर्स होने का कोई फिजिकल साइन था ही नहीं। सो डॉक्टर ने एक ओपिनियन दी कि चाइल्ड है ये डेफ और म्यूट पूरी ज़िंदगी रहेगा। लेकिन उसके जो बच्चे के पिताजी थे उसको ये बात मंजूर नहीं थी, तो उन्होंने भी अपनी एक ओपिनियन दी। अंदर ही अंदर उन्होंने एक्सप्रेस नहीं करी अपनी ओपिनियन कि जो उनका बेटा है वो म्यूट चाइल्ड डेफ नहीं होगा। वो ये इस रियलिटी इस इन्फ्लिक्शन जो रियलिटी नेचर ने उनके साथ की थी वो इसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। सो उन्होंने ये कहा कि द होल कोर्स ऑफ थिंग्स गोज टू टीच अस फेथ। वी नीड ओनली ओबे। देयर इज अ गाइडेंस फॉर ईच ऑफ अस एंड बाय लोली listening we shall hear the right word desire more than anything else. I desire that my son should not be a deaf mute. For the desire I never rendered, not for a second. Many years previously I had written, our only limitation are those that we set up in our minds. For the first time, I wondered if that statement were true. Lying on the bed in front of me was a newly born child without the natural equipment of hearing. Even though he might hear us and speak, he was obviously disfigured for life. Surely this was an limitation which this child had not set up in his own mind. As he grew older and began to take notice of things around him, we observed that he had a slight degree of hearing. When he reached the age when children usually begin talking, he made no attempt to speak, but we could tell by his action that he could hear certain sounds slightly. That was all I wanted to know. I was convinced that if he could hear even slightly, he might develop still greater hearing capacity. Then something happened which gave me hope. It came from an entirely unexpected source. We bought a record player. When the child heard the music for the first time, he went into ecstasy and promptly approached the machine. So क्या हुआ कि जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता गया उसने अपनी सराउंडिंग्स को नोटिस करना स्टार्ट किया। ही ऑब्जर्व कि पेरेंट्स ने ऑब्जर्व किया कि उसके अंदर स्लाइटली डिग्री ऑफ हियरिंग है। व्हेन ही रीच द एज व्हेन द चिल्ड्रन यूजुअली बिगैन टॉकिंग, जब वो उस एज पे पहुंचने लगा जब बच्चे बात करने लगते हैं, उसने कोई अटेम्प्ट नहीं करा, बोलने का कोई अटेम्प्ट नहीं करा। बट वी कुड टेल बाय हिज एक्शंस दैट ही कुड हियर सर्टेन साउंड स्लाइटली। वो उसके एक्शन से वो पता चल रहा था कि वो थोड़ा थोड़ा वो सुन सकता था। फिर कुछ हुआ जिससे माँ बाप को कुछ होप मिली, और वो भी एक एंटायरली अनएक्सपेक्टेड सोर्स से। उन्होंने एक रिकॉर्ड प्लेयर खरीदा, और जब बच्चे ने पहली बार म्यूज़िक सुना तो फिर उसने अपने इशारों से मतलब ये समझाने की कोशिश करी कि वो ये सारी आवाज़ें ये सारी आवाज़ें वो सुन सकता है। सो इसी तरह पेरेंट्स को एक न्यू होप मिली, मतलब तो इसी तरह वो कंटिन्यू करते गए, मतलब ऐसी उसको न्यू लेसन्स देते गए, साइकोलॉजिकली उसको मोटिवेट करते गए कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिए। सो बच्चा मतलब एक कैपिटल में गया, उसने जो पेपर है उसने
शू मेकर से पैसे मतलब बोरो करे और फिर उसे सोल्ड आउट करा, पेपर को फिर से री इन्वेस्ट करा पैसे नए पेपर खरीदने में, और इसी तरह उसने अपना फर्स्ट टाइम अपना मतलब बिजनेस करा। तो इस लिटिल वेंचर को डेफ बॉय ने मतलब पहली बार करा। तो फिर जब वो वापस घर आया तो उसकी मम्मी ने जब देखा तो उसको वो बहुत रोई, क्योंकि उनको उनके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो लिटिल डेफ बॉय था हैज़ गोन आउट इन द स्ट्रीट एंड रिस्क हिज लाइफ टू अर्न मनी। बट उसके फादर ने की डिफरेंट ही एक ओपिनियन थी। उन्होंने एक ब्रेव एम्बिशियस सेल्फ रिलायंट लिटिल बिजनेसमैन देखा हु इन्वेस्टेड इन हिमसेल्फ इंक्रीज हर, जिसका जो कॉन्फिडेंस था अपने अंदर 100% था कि वो बिजनेस में जाके रहेगा, और ही हैड वॉन। उसने खुद से इनिशिएटिव लिया। सो यही इसमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी आप किसी भी प्रॉब्लम से मतलब नेचुरल प्रॉब्लम भी हो आपको, जैसे कि आप डेफ हो, अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस हो आपके अंदर, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। सो बी सेल्फ कॉन्फिडेंट। इफ यू लाइक दिस लेसन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।